Namaskar all of you. How are you all? I hope you all are well and you are also doing your studies. It is your computer class for class 9, chapter 18. Chapter name is Data Analysis and Representation, part 2. So today in this chapter we are going to discuss about pivot table, that what is pivot table and why we use pivot tables. Next one is charts in MS Excel. There are different type of charts in MS Excel and we can use these charts to represent a data and to analysis of our data. Next one is printing the worksheet, that how we can print our worksheet and how we can use the print command in our worksheet. Okay, so first of all, pivot table. So what is pivot table? Pivot table is a useful feature which help in preparing different reports by summarizing the large set of data. The report generated by pivot table can be used to analyze and explore the significant data which is otherwise detailed and large. It is easy to extract information using pivot table because it is sort, count, total and calculate the average of the data without use the formula. So it is user friendly and easy to use. So pivot table, I'm going to open MS Excel file. So with the help of this MS Excel file, I'm going to show you that how we can use these tables. So first of all, I'm selecting the table, like this is our table. So we are going to select the table. टेबल सेलेक्ट कर ली हमने यहाँ पे. आपको इस तरीके से टेबल आपने सेलेक्ट कर ली एंड देन आपको जाना है ऊपर इंसर्ट में. देन इंसर्ट में आपको मिलेगा ये टेबल में आपको मिलेगा ये पाइवट टेबल. ठीक है. सो विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल वी कैन इजीली अरेंज आवर डेटा एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डेटा इन पाइवट टेबल. तो आप क्लिक करेंगे पाइवट टेबल पे. हमने यहाँ पे क्लिक किया. ठीक है. तो यहाँ पे क्या आ गया, हमने जो टेबल रेंज सेलेक्ट किया वो आ गया. क्लिक ऑन दिस ओके. ओके. सो आपको यहाँ पे ये जो सेलेक्ट करना है इसको इस तरीके से सेलेक्ट करना है. सेलेक्ट किया, देन इंसर्ट पाइवट टेबल एंड क्लिक ऑन ओके. तो ओके पे जब आप क्लिक करेंगे तो इफ यू आर चेंजिंग द नेम ऑफ पाइवट टेबल फील्ड यू मस्ट टाइप अ न्यू नेम और फील्ड. तो यहाँ पे हमको ये जो वर्कशीट है ये न्यू बनानी पड़ेगी और आप इस पे क्लिक करके जो भी डेटा रेंज आपको सेलेक्ट करना है, लाइक आप टोटल सेलेक्ट करना चाहते हैं या आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपने उतना एरिया सेलेक्ट किया एंड देन हमने इसको न्यू वर्कशीट में ले लिया. तो अभी देखिए यहाँ पे एक ये टेबल बन गई है. ठीक है. पहले क्यों नहीं आ रही थी टेबल, क्योंकि हमारा जो टेबल है उसका फॉर्मेट में हमने मर्ज की हुई है काफी सारी चीजें, इसलिए वो प्रॉपर नहीं आ रही थी. ठीक है. अब देखिए जो जो फील्ड आपने यहाँ पे सेलेक्ट की थी, लाइक टोटल, PT1, PT2, हाफ ईयरली, वो सब यहाँ पे आ गई हैं. ठीक है. अब आपको जैसे बच्चों के टोटल मार्क्स चाहिए तो हमने इस पे क्लिक किया तो ये क्या आ गया, सम ऑफ टोटल मार्क्स. नाउ यू वांट टू सी द PT1, सो दिस इज सम ऑफ PT1 मार्क्स. देन यू वांट टू सम ऑफ हाफ ईयरली टोटल. सो आप यहाँ पे इन सब का सम इस तरीके से ले सकते हो. और अब आप इन टेबल्स पे ये जो फील्ड्स हैं इन पे फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम्स भी अप्लाई कर सकते हैं.
सो लाइक दिस आप किसी भी टेबल के ऊपर पाइवट टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जितना एरिया सेलेक्ट किया था, जितने भी कॉलम्स हमने सेलेक्ट किए थे PT1 से लेके टोटल तक के, तो उतने एरिया की एक पाइवट टेबल ये बन गई, ठीक है। ये उसी पर्टिकुलर फील्ड की पाइवट टेबल है जो जो फील्ड हमने सेलेक्ट की थी, ठीक है। नाउ our next topic is charts in MS Excel. So what is charts in MS Excel and why we use charts? So charts are the graphical representation of the data present in the worksheet. So there are different types of chart. I'm going to show you different type of chart in this sheet. So again I'm going to open that Excel sheet. Yeah, so this is our Excel sheet. Now I want to create a chart of students, okay. So first of all, see, there are different type of charts. Click on it, this insert, and then these all are the charts. तो यहाँ पे कौन कौन से चार्ट्स हैं देखो, पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, कॉलम चार्ट है. So these all are the different type of charts. This is maps, you can create the maps, and this is what pivot chart. So there are different type of charts which you can use in your data, and chart help you in presenting the data in a meaningful manner which is easier to understand. MS Excel has a variety of chart like pie chart, bar chart, scatter chart, line chart, area chart. So these all are the different type of chart, and they are designed for different purposes. The chart that you shall be using to show the grade distribution of a pie chart. So first of all we will select this. हमने किसको सेलेक्ट किया, स्टूडेंट नेम को सेलेक्ट कर लिया. देन क्लिक ऑन कंट्रोल की एंड सेलेक्ट टोटल, ठीक है. ये भी हमने सेलेक्ट कर लिया. तो हमने क्या सेलेक्ट किया, सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स का नेम सेलेक्ट किया. देन क्लिक ऑन दिस कंट्रोल की एंड सेलेक्ट दिस. ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है. अब आपको क्लिक करना है चार्ट पे, लाइक यू वांट टू इंसर्ट अ बार चार्ट इन योर डॉक्यूमेंट और यू वांट टू इंसर्ट अ कॉलम चार्ट. तो क्लिक ऑन दिस, और यहाँ से जैसे हमने ये कॉलम चार्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया. तो देखो जैसे ही आपने कॉलम चार्ट पे क्लिक किया, नीचे आपको इसका प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि ये किस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है. लाइक मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो देखो ये हमारे पास एक चार्ट आ गया है, और इस चार्ट में हमें क्या शो हो रहा है कि किस किस बच्चे के कितने मार्क्स हैं. लाइक हरी के मार्क्स जो हैं वो कहाँ पे हैं, तो अकॉर्डिंगली नवीन के मार्क्स सबसे ज्यादा हैं. तो हमें इस चार्ट को देखते ही जो भी इसका रिजल्ट है वो क्लियरली पता लग रहा है यहाँ पे, ठीक है. नाउ लाइक वी वांट टू यूज दिस पाई चार्ट. आपको इंसर्ट करना है. वैसे मार्क्स के लिए पाई चार्ट इंसर्ट करते नहीं है क्योंकि प्रॉपर दिखाई नहीं देता है, बट बिकॉज आपके इसमें बुक में दिया हुआ है पाई चार्ट, इसलिए मैं आपको पाई चार्ट इंसर्ट करके दिखा रही हूँ कि आप इस तरीके से पाई चार्ट को इंसर्ट कर सकते हो. लेकिन देखो अभी इस पाई चार्ट को इंसर्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं शो हो रहा है. देखो लाइक हमने मान लीजिए टोटल का ये, ठीक है. तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ये जो है PT1 के मार्क्स हैं. अब इसमें 1 2 3 4 इस तरीके से कलर्स आ रहे हैं. तो ये हमें प्रॉपरली हमारी जो ये शीट है इसके अकॉर्डिंग हमें बार चार्ट या लाइन चार्ट या और कोई चार्ट इंसर्ट करना चाहिए. इस टेबल के अकॉर्डिंग पाई चार्ट हम इंसर्ट नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं. तो चार्ट भी हमें देख के इंसर्ट करना पड़ता है कि हमें हमारे डॉक्यूमेंट में किस तरीके की चार्ट की रिक्वायरमेंट है. तो यहाँ पे अगर आप बार चार्ट इंसर्ट करेंगे तो वो ही ज्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए रहेगा, क्योंकि उसी में ही हमें स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो प्रॉपरली दिखाई देंगे. जैसे हमने इस पे क्लिक कर दिया और इस पे क्लिक करके हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये जो चार्ट है ये हमें प्रॉपरली यहाँ पे
शो हो रहा है कि किस बच्चे के कितने मार्क्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंटिंग द वर्कशीट। तो प्रिंटिंग द वर्कशीट मीन्स इफ यू वांट टू प्रिंट द वर्कशीट, अगर आपको वर्कशीट जो है वो प्रिंट करनी है, यहाँ पे आपको इस वर्कशीट का प्रिंट आउट चाहिए। देखिए इसमें और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हैं, तो वी विल डिस्कस दीज चार्ट इन योर live class. Now I'm going to show you that how you can print your worksheet. Click on this file tab and then click on print option. प्रिंट ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपनी जो आपकी फाइल है उसका प्रीव्यू दिख जाएगा कि आपकी फाइल किस तरीके से प्रिंट होगी पेज में, और यहाँ से आप पेजेस बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से पेज प्रिंट करने हैं। देन नंबर ऑफ कॉपीज कितनी चाहिए आपको, पर पेज कितनी कॉपीज चाहिए, ये सब सेटिंग्स आप यहाँ से चेंज कर देंगे। पेज आपको ओरिएंटेशन लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए, अगर आप लैंडस्केप लेंगे तो इस तरीके से पेज आ जाएगा। तो ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एंड देन क्लिक ऑन दिस प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे तो अगर आपका जो कंप्यूटर है या आपका जो लैपटॉप है वो प्रिंटर से कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली आपका जो पेज है वो प्रिंट हो जाएगा। So these three topics we have discussed today in today's class. First is pivot table and हमने pivot table बना के देखी, then charts in MS Excel, then why we use chart, and there are different type of charts, bar chart, line chart, pie chart, scattered chart. These all are the different type of charts. Then printing the worksheet, we have discussed that how we can print the worksheet. So these three topics we have discussed in today's class. I will share your homework in your class group, so do complete your homework on time, and we will again discuss these topics in your live class. So do attend your live class and we will discuss these topics thoroughly in your live class. Thanks for watching this video. Stay healthy, stay safe and keep learning. Have a nice day.